हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इन दिस सेकेंड मॉड्यूल ऑफ रीड इट राइट। रीड इट राइट इज प्राइमरली हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड द एडिटोरियल फ्रंट। ठीक है, कि अलग अलग तरीके के एडिटोरियल आर्टिकल्स जो अच्छे न्यूज़पेपर में आते हैं, नेशनल डेली में आते हैं, लाइक द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और एडिटोरियल हम उठाकर आपके लिए लाते हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग फ्रेम्ड. Okay, the game here is the important learning out of this session is trying to understand what is the main argument, how the arguments are being framed, and by doing this we will become good at our reading comprehension or logical reasoning. ठीक है, okay, that is what basically the idea. So in examinations like CAT, where you have to work hard on your reading capability. ठीक है, आपको आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी पे बहुत यू कैन से फोकस करना पड़ता है। आपको एक बार पढ़ के पूरा अंडरस्टैंडिंग कर देना होता है। वहाँ पे इस तरीके के एडिटोरियल का रेगुलर डिस्कशन विल बी वेरी यूजफुल टू यू. इट्स नॉट जस्ट अबाउट एडिटोरियल का डिस्कशन, बट इट इज़ मोर अबाउट हाउ टू रीड. ओके, विच आर द लाइन्स विच आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और किस तरीके से वो दो लाइनें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आई होप द फर्स्ट सेशन वॉज कंफर्टेबल फॉर यू. ठीक है, आई हैव सीन मेनी ऑफ यू लाइक दैट वीडियो. ओके, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा और गिव मी लॉट ऑफ फीडबैक. ठीक है, दिस इज अवर सेकेंड सेशन. आई वुड ऑल्सो लाइक टू यू कैन से टेक लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम यू ऑन दिस मैटर एज वेल. ओके, ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट जर्नी टूवर्ड्स अवर रीड इट राइट सेकेंड सेशन. आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ कार्ड्स. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कैम took place in India recently, and surprisingly, the government authorities are not putting right efforts on this. ठीक है, the scam may be large. Okay, scam may be big. We don't know what is that number, that कितने रुपयों का scam है. However, we know that there is ABG shipyard scam. ठीक है, that scam is around 22,800 crore rupees. ठीक है, a company started in Surat, ठीक है, and created havoc in the entire India. Okay, that is ABG shipyard. ठीक है, 22,800 crore scam. Here we don't know what is the scam. However, why we are really bothered about is that it is creating a lot of trouble to the system. It is a systemic risk. Remember, the word is not systematic. It is systemic, derived out of system. It is impacting the system in a big way. It is known as House of Cards. As you can say, this Hindu editorial of 8th March talks about it is House of Cards. ठीक है, interestingly, on the International Women's Day, there is an editorial coming about a woman who is at the helm of the one of the very important financial institutions in the country, which is called NSE. She remained NSE की MD, CEO, and she has done this kind of issues. To give you more clarity about how big is an NSE. NSE on a yearly basis is doing a trade of some around 5 to 6 trillion dollar. Okay, this is huge. इंडिया का पूरा साल का GDP is 2.2 trillion dollar. मोदी साहब is thinking about having, you can say, India's GDP to reach to 5 trillion dollar, and that too by some around 2025. कोरोना की वजह से now that target may be little far-fetched. However, you understand the size of the NSE, and this NSE is troubled by, you can say, some kind of activities by Chitra Ramakrishnan and this Mr. Anand Subramaniam. Anand Subramaniam, ठीक है, has been appointed by Miss Chitra Ramakrishnan, ठीक है, at a very important position without giving any right information, and he was appointed on the guidance of some yogi sitting at Himalaya and giving guidance to Chitra madam, and Chitra madam is taking those guidance from yogi and doing all the activity. So all those things are really a problem.
But the problem is not just about, you can say, Chitra madam is taking guidance from Yogi and doing the work. Now that's not the problem. The problem is that information, okay, whatever she was sharing with that Yogi Baba is very important information of the, you can say, organization, ठीक है. एंड वो देश की बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे रही है, मतलब सॉरी एक आदमी को दे रही है, ठीक है. और वो आदमी कौन है पता नहीं है, और वो गाइडेंस देते हैं, एंड शी इज वर्किंग ऑन इट. दैट्स वन प्रॉब्लम. एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज जो उन्हीं की लाइफ के साथ कनेक्टेड था 2016 में, दैट वाज वेरी फेमस स्कैम टुक प्लेस, ठीक है, विच इज नोन एज co-location scam. So we are going to talk about what is co-location scam. Okay, we are going to talk about that as well. However, the main argument here is the systemic risks which are coming out of, stemming from, that is coming out from misdeeds at the NSE have evinced lackluster response. The response is not very powerful, it is lackluster. People are the CBI and the other sleuths are not giving powerful, you can say, response to the scenario. So what is this, you can say, co-location hosting all about? That's what the scam all about. Okay, let's understand what is co-location. Okay, so co-location का मतलब होना coming very near to something. Co-locate, साथ में रहना, that's a meaning to this. So for example, let us say you are a broker in NSE. Okay, so you pay money to NSE, that is a National Stock Exchange. You pay money and you become broker. NSE having their own server, and that server data is directly connected to your server. Okay, so NSE ka server and your server are directly connected. You have a dedicated, you can say, line, you can say, coming from server of NSE to your server. That's a normal way. Okay, NSE also started one very interesting thing. Okay, they said कि we are also giving co-location services. So what happens? NSE का सर्वर जहाँ पे लोकेटेड होगा वहीं पे आपका ब्रोकर का सर्वर साथ में लोकेटेड होगा, ठीक है. Now they started giving that service कि अगर आपको यहाँ पे सर्विस चाहिए, ठीक है, आपको co-location चाहिए, will give you at a premium price, ठीक है. वेरी गुड, है ना. होता है दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे आप बोलो कि लेट्स से आपको इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और आपको बीच में कोई परेशानी नहीं चाहिए. सो इधर यू टेक डेडिकेटेड होस्टिंग, ठीक है. भाई आप डेडिकेटेड हो, आपको डायरेक्टली उसी से डेडिकेटेड सर्विस आती है, ठीक है, सर्वर से डायरेक्ट सर्विस आती है. या आप बोलोगे कि भाई आपका सर्वर जहाँ पे होगा वहीं पे मेरा भी सर्वर होगा, और आपके मेरे बीच में, ठीक है, से सीधा मूवमेंट होगा, सीधा ट्रांजैक्शन होगा. जब कोलोकेशन होस्टिंग होती है तो बहुत तेज़ होती है, ठीक है. डेडिकेटेड होस्टिंग में थोड़ी सी कम, वीकेंड से स्पीड आती है, ठीक है, मतलब इतना तेजी से आता नहीं है. और जो आपके घर में और मेरे घर पे जो इंटरनेट आता है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा वीकेंड से लैग होता है, ठीक है. टू अंडरस्टैंड दिस इन अ लिटिल क्रिटिकल वे एंड ए क्लियर वे, लेट अस assume that you are watching, you can say, India का क्रिकेट मैच, ठीक है. There are three ways you can watch it. Either you are going through some sites on internet like CricBuzz, so you are going through internet की site, okay, or you are watching on a TV, okay, or you are watching it on Hotstar. Okay, Hotstar is that OTT platform. Okay, now you know then when you watch it on, let's say, Hotstar, it is quite late, करीबन 2 या 3 बॉल लेट चलता है. इंटरनेट बहुत तेजी से आता है, ठीक है. टीवी उससे थोड़ा सा लैग करता है, टीवी से कहीं गुना ज़्यादा लैग हॉटस्टार करता है. सो देयर आर लैगिंग हैपनिंग. लैगिंग समझ में आ रहा है सबको? ग्रेट. तो ये समय का लैगिंग है. स्टॉक मार्केट की दुनिया में ये जो लैगिंग है, ठीक है, ये जो अगर आपके पास थोड़ा सा भी लैग हुआ, मिली सेकेंड्स का भी लैग हुआ, बिलीव मी, करोड़ों रुपये कमा सकते हैं, ठीक है. करोड़ों रुपये कमा सकते हैं, अरबों रुपये कमा सकते हैं उस लैगिंग की वजह से. क्योंकि आजकल पूरा का पूरा NSE एंड स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन अल्गो ट्रेडिंग. किसके ऊपर काम करता है? अल्गोरिदम ट्रेडिंग. अल्गो ट्रेडिंग समझ में आ रहा है सबको?
अल्गो ट्रेडिंग का क्या मतलब हो गया? ट्रेडिंग हो रहा है पर अल्गोरिदम सॉफ्टवेयर करता है, आदमी मैन्युअली नहीं कर रहा है। एक आदमी है मैन्युअली कोड बनाता है, कोड लिख दिया, कंप्यूटर को बता दिया, अब कंप्यूटर उसको तेजी से प्रोसेस करता है। ये सुनो, दैट इज कॉल्ड अल्गो ट्रेडिंग। और ये अल्गो ट्रेडिंग की वजह से मतलब ऐसा कोलोकेशन वाली जो दुनिया है वो बड़ा फायदा देती है। तो ये बड़ा कोलोकेशन का काम उन्होंने चालू करा। हाउएवर इस कोलोकेशन की वजह से किसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिली, किसको नहीं मिली, ठीक है, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। सेबी ने 2016 में एनएसई के ऊपर 600 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था और एनएसई अपना आईपीओ लेकर आने वाला था, वो भी उसका रह गया, ठीक है। सो दैट ह्यूज इज द इश्यू। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, चलिए, ग्रेट। सो एनएसई के अंदर जब ऐसी बातें होती है, ठीक है, सो यहां पे जो उन्होंने वर्ड यूज करा सिस्टमिक रिस्क का मतलब क्या, उसको समझते हैं। द रिस्क कमिंग फ्रॉम द सिस्टम, okay, that is called systemic risk. Now what is the meaning to this? The meaning is very simple. That is, let's say you are putting your money in the bank. Bank is a huge system. Okay, so आपके खुद के कोई डिसीजन की वजह से आपको रिस्क हुआ, that is a different issue. That's your personal risk. That's a business risk. System कि आपने बैंक में पैसे लगा के रखे और मानो अचानक से पूरी बैंक फर्जे में चली गई, what happens? आपका जो प्रॉब्लम हुआ ऐसा सबका प्रॉब्लम हुआ। ये सुनो, आपके पैसे वहां पे फंसे हुए हैं, आपको लगता है मुझे पैसे मिलेंगे वापस, ठीक है, शायद ना भी मिले, है ना, शायद ना भी मिले, ठीक है। सो दैट इज सिस्टमिक रिस्क। ओके, सो व्हाट हैपेंस, इट इज अ फुल सिस्टम व्हिच इज हैविंग अ प्रॉब्लम। So for example, let's say suddenly in Ukraine, Russia invaded. Russia said it is our military operation. It's not a war. Okay, Russia says it's not a war. It's a military operation. ठीक है. So what happens? It's a पूरे यूक्रेन के बिजनेसेस को बड़ा प्रॉब्लम. That is called systemic risk. Okay. So when NSE is doing something wrong, okay, so all the companies listed there, they will also face the heat of the problem happened at NSE. That is called systemic risk. Another risk is, let us say, पूरा market डूब गया. That is also known as systemic risk. Okay, so what happens? Let's say एक example लेते हैं, एक बैंक पूरी वीकेंड से ट्रबल में आ गया। बैंक अकेले तो काम करती नहीं है, बैंक बहुत सारी और बैंकों के साथ काम करती है, तो दूसरी और बैंक भी उसके साथ फंसने लगी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे कंट्री में पैनिक स्प्रेड होने लगा और धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी अफेक्ट हो गई। दैट इज हाउ द सिस्टमिक रिस्क हैपेंस। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस होना, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई तो सिस्टमिक रिस्क होना, बैंकरप्सी, कोई बहुत बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो सिस्टमिक रिस्क होना, ऑल दो सिस्टमिक रिस्क। सो एक कंपनी, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा से प्रॉब्लम आया, उसके रिपल इफेक्ट बाकी सब लोगों को होना, दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक रिस्क। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो सिस्टमिक रिस्क इज रेफर्ड टू नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। नाउ दिस इज लिटिल टेक्निकल, है ना, जो लोग मैनेजमेंट की दुनिया में जाना चाहते हैं उनको ये वर्ड समझ में आना चाहिए, डाइवर्सिफाइबल रिस्क। सो व्हाट हैपेंस, लेट अस से you can say purchasing a share of a company, ठीक है। Now you know that there may be a lot of fluctuation in the share price of that company, so you try to diversify yourself, that you are not just putting your money in only that company, but you are also putting money in the gold and mutual fund and a lot of other area. So you diversify and you try to reduce your risk. Okay, but certain risk are not diversifiable. So for example, let's say you can say working in India, you can't diversify your risk associated with the country called India. So systemic risk is fluctuation in the returns of securities that occur due to macroeconomic factors, okay, which may be connected to political, social, economic factors like interest rate risk, inflation risk, market risk. Okay, while unsystematic risks are connected directly to the business risk, financial risk, and those kind of things. Okay, great. So what is the word here? They said the argument made was here the systemic risk stemming from coming out the misdeeds at the NSE have evinced. Evince karna is to, you can say, bring about. Okay, so that is to reveal, to show. Okay, it shows the lackluster response. Now who is to be blamed here? Obviously CB. Obviously CBI.
obviously all the important, you can say, bodies, okay, which are, you can say, controlling such kind of problems. So here it is evince as a word that is called reveal or show. Okay, so this systemic risk stemming from misdeeds at NSE has evinced the lackluster response is what we are trying to understand. चलिए अब पढ़ते हैं इसको. ठीक है, तो पूरा बड़ा एक ऐसा राइटअप है, इसको पढ़ेंगे, है ना, 2 स्लाइड में डिवाइड किया गया, फिर इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आपका काम है यू हैव टू टेक अ पॉज करिए इस वीडियो को, शांति से पढ़िए. इट इज़ नॉट, यू कैन से, अ मूवी कि जहाँ पे आप मतलब स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, मज़ा नहीं है, फ़ायदा नहीं है, आप सीख नहीं पाओगे. पॉज करिए, पढ़िए इसको. ठीक है, ओके, एंड देन वी गो टू रीडिंग इट. ओके, ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, पॉज करिए, पढ़िए इसको और आगे बढ़िए. इज दैट कंफर्टेबल? चलिए, ग्रेट. आई एम रीडिंग इट फॉर यू. द संडे अरेस्ट. सो चित्रा रामकृष्णन or Ramakrishna, not Ramakrishnan, Chitra Ramakrishna was arrested on Sunday evening. The former MD and the CEO of India's largest stock exchange, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है भैया ये. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज के स्टॉक एक्सचेंज इससे भी बहुत बड़ा है. ठीक है, by CBI should change the course of what has been a laid back probe into alleged misuse of exchange data by market player and jarring even surreal governance लैप्सेस. बड़ा सा आर्ग्यूमेंट दे दिया कि जब ये चित्रा मैडम का अरेस्ट हुआ, चित्रा मैडम का जो अरेस्ट हुआ, ठीक है, उसको कैसे देखना चाहिए. लुक एट द वर्ड, द पॉइंट हियर इज शुड. शुड को ध्यान दीजिए, दिस गिव्स यू टोन व्हेन यू आर रीडिंग इट. ठीक है, ऑथर उनके अरेस्ट को कैसे देखते हैं. ठीक है, ऑथर सेज द अरेस्ट ऑफ चित्रा रामकृष्णा शुड चेंज. ठीक है, मस्ट नहीं बोला, ठीक है, विल नहीं बोला, ठीक है, शुड बोला. शुड गिव्स यू अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, शुड पुट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुड पुट्स ड्यूटी. ओके, तो ये ड्यूटी लगा दिया लोगों के ऊपर कि जो लोग इस फील्ड में हैं, सीबीआई के साथ या जो भी इस तरीके के फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में बात हो रही है. दैट द अरेस्ट शुड चेंज द कोर्स, उसको बदलना चाहिए. ठीक है, मस्ट नहीं बोला है, शुड चेंज. ठीक है, व्हाट हैज बीन लेड बैक प्रॉप, जो अभी तक लेड बैक प्रॉप था, ठीक है, विच वॉज alleged misuse of exchange data by market players and jarring and even surreal governance lapses. तो jarring का मतलब क्या हो गया. jarring is something which is very shocking, incongruent, ठीक है, which is clashing. ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि एक पूरी फाइनेंशियल मार्केट में एक शॉक पैदा कर दिया इस पर्टिकुलर चीज को. जो अभी तक लेड बैक प्रोब था वो चेंज करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है. ठीक है, विच मीन्स द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन, द ऑथर गिव्स एन ओपिनियन कि इनको ऐसा करना चाहिए. ये ऑथर का ओपिनियन है दोस्तों. ठीक है, यहाँ पे ऑथर खुद बता रहे कि उनको ऐसा करना चाहिए. ये फैक्ट नहीं है, समझिए, ये फैक्ट नहीं है. You must understand the focus is on the word called should. Okay, the Delhi court has granted CBI sleuths 7 days to interrogate the former National Stock Exchange boss. ठीक है, so basically हमने अभी वर्ड देखा sleuth, sorry, jar देखा. To jar is a kind of giving painful shock. Okay, ठीक है, or having unpleasant or disruptive effect. ठीक है, इफेक्ट, सॉरी, और इट इज इनकॉन्ग्रुएंट आउटकम. ओके, इट इज क्लैशिंग. ओके, सो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, द टेलीफोन स्ट्रक अ जैरिंग नोट इन दोस रेनेसा सराउंडिंग. सो द टेलीफोन स्ट्रक अ जैरिंग नोट. सो एकदम शांति से दुनिया चल रही थी और अचानक से लेकिन से आवाज आई. सो इट इज टर्म्ड एज क्लैशिंग. ओके, सो दैट इज हाउ द जैरिंग वर्ड इज. ओके, सो हमने देखा कि जो यू कैन से मिसयूज हुआ एक्सचेंज ऑफ डेटा का, दैट इज कोलोकेशन स्कैम के साथ कनेक्टेड था. ठीक है, और दिल्ली कोर्ट ने सीबीआई स्ल्यूथ को 7 दिन का इंटरोगेट किया था. किसको इंटरोगेट किया था? एनएससी के लीडर को, एनएससी के टॉप यू कैन से पर्सन को. ठीक है, ओके, सो दिल्ली कोर्ट हैज ग्रांटेड सीबीआई 7 days to interrogate former NSE boss about a month after stock market watchdog SEBI.
Now, what do you mean by stock market watchdog? Watchdog is a regulator. Okay, watchdog is known as regulator. Who is the regulator of stock market? SEBI. Passed a 190-page order that has made headlines for its assertion about Miss Ramakrishna sharing confidential internal information with unknown person. ठीक है, तो ये काम हुआ था जिसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को 7 दिन का इंट्रोगेशन करने का परमिशन दे दिया. Yes or no? That is how the idea is. What is the meaning of surreal? Surreal is bizarre. Surreal is unreal, unusual. Okay, just like let's say you talk to Sherlock. Sherlock says, "What are?" मतलब you are asking Sherlock, "What are your plans tonight?" Sherlock says, "Me and my friend, ठीक है, are going to buy some glasses." ठीक है, then you may possibly wonder, what will you do after that? He says, then he can say, after that we will see. So that's bizarre for, you can say, Sherlock Holmes to talk about. So you may be wondering, he's talking about glasses. So you are talking about wine. He says we are going to talk about glasses, matlab chashme. Okay, that is how the idea is. So surreal is bizarre, unusual, weird, strange. You don't expect Sherlock to talk about such kind of poor jokes, but that's how the idea is, surreal. Okay, I think that's pretty clear. Okay, look at the word here. Okay, now when they mention that, the author says now the entire process has to be changed. ठीक है, और एनएससी ने दिल्ली कोर्ट ने ये परमिशन दे दिया है सेपरेटली. अब दिल्ली कोर्ट का इश्यू और सेपरेटली अलग बात है. ठीक है, दो अलग अलग मुद्दों के बारे में बात हो रही है. सीबीआई हैज गॉट एक्सटेंडेड कस्टडी ऑफ आनंद सुब्रमण्यम. मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था आनंद सुब्रमण्यम. द एनएसएस फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हायर्ड ऑस्टेंसिबली एट द बिहेस्ट ऑफ अननोन योगी. उनको मतलब उनको अपॉइंट किया था, कोई योगी ने बताया, डिसरिगार्डिंग द काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड गवर्नेंस नॉर्म्स दैट वन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सच इज सिस्टमिक इंपॉर्टेंस इन द फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में इतनी बड़ी संस्था और इतनी बड़ी संस्था में इतना बड़ा लैप्स कि कोई योगी कुछ बोले और वो आंखें बंद करके लोग मान ले, वेरी बैड. ठीक है, द कैची डिटेल्स must not detract. Now this is a very interesting word. ये जो कैची डिटेल है कि कोई योगी के बीएस के ऊपर कोई बंदा काम कर रहा था, तो ये हमें डिट्रैक्ट नहीं करना चाहिए from a larger question. What is the larger question which is coming out of it? That larger question is, that is deployment of co-location services and the lacuna in the India's oversight mechanism. ठीक है, कि भाई आपने कोलोकेशन सर्विस किस बेसिस पे दी, नंबर 1, और जब आपको ओवरसाइट करना है, ठीक है, आप उसमें क्यों इतने बड़े लेक्यूना लगाते हो. दिस इज मल्टी लेयर फेल्योर. मल्टी लेयर फेल्योर का मतलब क्या हुआ? इट इज सीधा, यू कैन से, मैडम उनको अपॉइंट कर रही है, चित्रा मैडम अपॉइंट कर रही है. ठीक है, जब चित्रा मैडम अपॉइंट करती है तो क्या बाकी डायरेक्टर सो गए थे क्या? ठीक है, क्या बाकी डायरेक्टर क्यों चुप बैठे? ठीक है, और वो भाई साहब इतने दिनों से काम कर रहा है, उनका अपॉइंटमेंट कोई पूछ नहीं रहा है कैसे हुआ? क्या भैया इंडिया में आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा जो कुओ वारंटो है वो क्या हवा में चला गया? ठीक है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड. दैट इज व्हाट द आइडिया इज. सो ये जो स्ल्यूथ है, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, सवाल है. सीबीआई स्ल्यूथ. स्ल्यूथ का मतलब है द पर्सन हु इज डिटेक्टिव, लाइक शेरलॉक होम्स, ठीक है, या अपने एसीपी प्रद्युमन साहब, है ना, उनके बारे में बात कर सकते हैं. बट द रियल पीपल आर दिस मिस्टर राकेश अस्थाना, एंड यू हैव टू टेल मी हु इज दिस गाय. प्लीज टेल मी इन द होमवर्क पार्ट. ठीक है, कमेंट में लिख के बताइए हु इज दिस चैप. जो यहाँ पे आपके सामने फोटो लगाया है वो कौन है? ठीक है, सो द गाय हु इन्वेस्टिगेट्स इज नोन एज स्ल्यूथ. सो व्हेन यू आर रीडिंग दिस सीबीआई स्ल्यूथ्स, what is the meaning of it, you should know this. Okay, ठीक है, I hope it is very clear. डिट्रैक्ट करना का मतलब होना है डिमिनिशिंग द वर्थ, डिमिनिशिंग द वैल्यू, बिलिटल करना, डिमिनिश करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, मिनिमाइज करना. ओके, सो किसी की वर्थ को कम करना, दैट इज कॉल्ड डिट्रैक्ट करना. लुक एट दिस, द कैची डिटेल मस्ट नॉट डिट्रैक्ट. डिट्रैक्ट इज नॉट कनेक्टेड टू डिस्ट्रैक्ट. No, it is not distraction. Remember this. Detract is a very interesting word. Detract बोलता है it is diminishing करना. Okay, value कम करना. Okay, that is how the idea is. Okay, so they must not detract the larger question, and they have to also check the lacuna. Lacuna is a singular, lacunae is a plural form,
NAE is a word basically being used. It's a Latin word. Lacuna is a pool. It's a group of thing. So it is a kind of lacuna. It also means a gap, unfilled space, a gap. So many times there are conceptual lacuna. There is a gap. Okay, so between your understanding. So what happens when you prepare? Okay, when you prepare for some competitive exam, okay, you learn concepts. ठीक है, you read from the books, ठीक है, but there is a gap in your scores. आप बहुत मेहनत करते हो पर आपका स्कोर नहीं आता है. क्यों नहीं आता है? The gap is all about practice. Okay, I hope it is very clear. The lacuna is that the co-location services by NSE which give market operator willing to pay a premium. Look at the sentence, very interesting sentence. अब ये sentence को ध्यान में रख देखिए. मैं कैसे पढ़ूंगा? ये दो कॉमा है ना, वो कॉमा को मैं हटाता हूं पहले. द कोलोकेशन सर्विसेज ऑफर्ड बाय एनएसई आर परमिटेड बाय सेबी. बट परमिटेड है परंतु कुछ गलत है. बट वर ऑस्टेंसिबली मिसयूज बाय सर्टेन प्लेयर्स. द कोलोकेशन सर्विसेज दे आर अप्रूव्ड बाय सेबी बट दे आर मिसयूज बाय सर्टेन प्लेयर. ठीक है, स्कैम उधर हुआ, कोलोकेशन स्कैम कहां पे हुआ, उसका मिसयूज हुआ. ठीक है, और एनएससी ने बाकी लोगों को अनफेयर एडवांटेज दे दिया. ठीक है, व्हाट इज कोलोकेशन सर्विसेज? जहां पे मार्केट ऑपरेटर्स को दे आर विलिंग टू पे प्रीमियम. ठीक है, और उनको हेड स्टार्ट मिलेगा. व्हाट यू मीन बाय हेड स्टार्ट? हेड स्टार्ट मिलना मतलब बाकी लोगों से थोड़ा सा तेज आगे बढ़ना. ठीक है, ताकि जैसे मैंने बता दिया ना, अल्गोरिदम ट्रेडिंग. ठीक है, अल्गो ट्रेडिंग होती है जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, और किसी के पास समय की जल्दी इंफॉर्मेशन मिल गई तो बहुत तेजी से काम होगा. सेबी अप्रूव करती है, पर स्कैम किस बात का था, उसको मिसयूज किया गया. एनएसई's केस एंटेल्स एन अनफेयर एडवांटेज. एनएसई का जो ये केस था उसने अनफेयर एडवांटेज दिया. इट हैज प्रोवाइडेड टू सम ब्रोकर्स विथ इट्स को लोकेशन यूजर कम्युनिटी. वॉट एवर द डिफेंडर ऑफ सच सर्विसेज में से, ये जो भी कोलोकेशन सर्विसेज मिली उसके जो डिफेंडर हो गए वो तो बोलेंगे यार अच्छी सर्विस है, ये तो देनी चाहिए. जो भी वो बोले, ठीक है, जो भी वो बोले तो उसका अपोजिशन कुछ आएगा. द प्रीमाइस, ठीक है, द प्रीमाइस डज नॉट जेल विथ एन ओपन मार्केट फिलोसॉफी. द प्रीमाइस डज नॉट जेल. मैंने जानबूझ के आपके लिए इस सेंटेंस को थोड़ा अलग तरीके से फ्रेम किया है. देखिए, ये सेंटेंस अगर मैं पूरा पढ़ूं तो बहुत डिफिकल्ट होता मेरे लिए. वॉट एवर द डिफेंडर ऑफ सच सर्विसेज में से, द प्रीमाइस ऑफ गिविंग प्लेयर विद अ डीपर पॉकेट, the quicker and more information than the average retail investor does not gel with an open market philosophy. So the premise of, गोली मारो उस पूरी चीज को, अब पढ़ो. द प्रीमाइस डज नॉट जेल विथ एन ओपन मार्केट फिलोसॉफी. ठीक है भाई, आप किसी को इस तरीके की कोलोकेशन सर्विसेज देते हो, क्या वो ओपन मार्केट फिलोसॉफी के मुताबिक सही है? यू मे वंडर व्हाट इज ओपन मार्केट फिलोसॉफी. चलिए मैं पहले बता देता हूं ओपन मार्केट फिलोसॉफी का मतलब क्या हुआ. ओपन मार्केट फिलोसॉफी का मतलब है देयर आर नो बैरियर टू फ्री मार्केट एक्टिविटी. नो बैरियर. ठीक है, कोई बैरियर नहीं है. ठीक है, देयर आर नो टैरिफ्स, देयर आर नो टैक्सिंग, देयर आर नो लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, देयर आर नो सब्सिडीज, देयर आर नो यूनियन बाजी. ठीक है, कोई भी ऐसा रेगुलेशन जो लोगों को रोके, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी नो बैरियर. ठीक है, नाउ जब हम बात करते हैं कि जब हम ऐसा कोलोकेशन सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो क्या वो ओपन मार्केट फिलोसॉफी के मुताबिक बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं, ठीक है, उसने वो इंफॉर्मेशन पहले ले ली. तो ओपन मार्केट फिलोसॉफी के मुताबिक तो गलत है, क्योंकि आप कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा. ये सुनो, समझ में आया? जिनके पास डीप पॉकेट है आप उनको प्रेफरेंशियल सर्विसेज देते हो, जिनके पास डीप पॉकेट नहीं है आप उनको नहीं दे रहे हो. सो दिस इज रियली बैड आइडिया. ये सुनो, अभी हमने देखा व्हाट इज अल्गो ट्रेडिंग. एक प्रोग्रामर होता है, वो कोड बनाता है, कोड के द्वारा दे ट्राई टू असेस द मार्केट डायनेमिकली एंड डू ट्रेडिंग. ठीक है, thereby it saves lot of time for the trader and it assesses situation dynamically and quickly goes for the kind of trading. Okay, ठीक है, so that is how the idea is.
ओके, इज दिस कंफर्टेबल टू एवरीवन? ओपन मार्केट समझ में आया? ओपन मार्केट इज बेसिकली एनी बैरियर टू एंट्री इज देयर, इट हैज टू बी रिमूव्ड। ओके, ठीक है। भारत में भी बहुत सारी जगह पे ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, ये सुनो, ठीक है। तो भैया ये महत्वपूर्ण बात है। अब आप देखिए दैट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, ठीक है, फ्रॉम एनएससी's board and auditors to SEBI, an independent regulator accountable to parliament, have not delivered is a larger worry. Look at this sentence, कितना कॉम्प्लेक्स लिखा है, ठीक है। अगर इसको मैं तोड़ तोड़ के देखूं तो क्या बोला, दैट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, ठीक है, द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दैट हैव नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, जो डिलीवर नहीं किया गया वो बात इज अ लार्जर वरी, ठीक है। टू हुम? सेबी, ठीक है, समझ आया? देखो सब्जेक्ट यहां पे क्या है, दैट इज अ लार्जर वरी, दैट इज अ सब्जेक्ट। व्हाट इज दैट? दैट यू कैन से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है, हैव नॉट डिलीवर्ड, द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैव नॉट डिलीवर्ड दैट एस्पेक्ट इज अ लार्जर वरी टू सेबी। समझ आया आपको? बहुत अच्छी बात है। क्यों सेबी को वरी होगा? बिकॉज सेबी इज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, ठीक है। और ये एनएससी बोर्ड एंड ऑडिटर वालों ने गलतियां करी और उस गलतियों को ध्यान रखना था सेबी को, और सेबी ने एक से ये ध्यान से नहीं देखा या उन्होंने गलती करी तो सेबी के लिए वरी का पार्ट है। ये सुनो, ये सेंटेंस बहुत क्लासिक था, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी था। वेरी गुड, ठीक है। सो नियरली 3 years have passed by between SEBI's 624 crore fine on NSEs for misuse of its co-location services and the latest order. तो ये दोनों के बीच में, ठीक है, 3 साल चले गए। जब को-लोकेशन सर्विस थी वो 3 साल पहले पकड़ी गई, ठीक है। चित्रा मैडम के बारे में अब ऑर्डर आया, 3 साल का ऑर्डर, क्या मजाक है, ठीक है। अ मैटर where sanctity of entire market comes under cloud should have been treated with a tad more urgency, ठीक है, tad more urgency, थोड़ा सा, इत्तू सा, है ना, tad more, इत्तू सा, tad का मतलब हो गया थोड़ा सा, a small extent, थोड़ी सी भी अर्जेंसी से उनको काम करना चाहिए। 3 साल बहुत बड़े हो गए, ठीक है। आपको यहां से बात समझ में आ रही है कि यहां पे जो सेबी या एक से जो भी रेगुलेटर है उन लोगों ने इस चीज को अर्जेंटली सीरियसली लिया नहीं है। ये ऑथर बोल रहे हैं, ये ऑथर का ओपिनियन है कि इन्होंने अगर थोड़ा सा भी, इत्तू सा भी, है ना, थोड़ा सा भी अगर सीरियसली लिया होता, ठीक है, शुड हैव बीन ट्रीटेड अर्जेंटली, तो कहानी अच्छी होती, ठीक है। द सीबीआई स्पेशल कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट सेबी व्हिच बिगेन प्रोब इन 2016 हैज बीन टू काइंड and gentle, while CBI, after filing FIR in 2018, has been most lackadaisical, ठीक है। इंटरेस्टिंगली सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बोला कि सेबी ने 2016 में जब अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया, सो दे हैव बीन टू काइंड एंड जेंटल। हाउएवर द कोर्ट, सीबीआई स्पेशल कोर्ट सेज सीबीआई खुद भी lackadaisical थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ lackadaisical? lackadaisical मतलब एंथुजियास्टिक नहीं है, जैसे ये गारफील्ड साहब, है ना, इनके पास सब कुछ अवेलेबल है, बोलते हैं आई कैन, मैं कर तो सकता हूं पर करूंगा नहीं। एंथुजियास्टिक है ही नहीं, हाफ हार्टेड है, ठीक है, अनइंटरेस्टेड है, लेजी है, केयरलेस है, ठीक है। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों को पता होता है कि तैयारी कैसे करना, ठीक है, पर हम बहुत लेजी होते हैं, हम करते नहीं है, दैट इज लैकेडेजिकल। ओके, तो यहाँ पे कौन लैकेडेजिकल था? सीबीआई। ओके, कौन यू कैन से काइंड और जेंटल हुआ? आपका सेबी, ठीक है, विद द न्यू सेबी चीफ इन प्लेस। कौन है नए सेबी के चीफ? बताइए दोस्तों। गवर्नमेंट लेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर हु इज आल्सो रिव्यूइंग द हैंडलिंग द एनएससी केस मस्ट एंश्योर that some deterrent action is accompanied by a review of checks and balances in the current governance structure. So उनको कहीं ना कहीं deterrent action तो लेना पड़ेगा। What do you mean by deterrent? Deterrent का मतलब होता है ऐसी कोई इवेंट जो डिस्करेज करे, ठीक है, फ्रॉम समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। दोस्तों मजेदार सी चीज, यूक्रेन ने मिन्स्क अग्रीमेंट के द्वारा उनके पास करीबन 200 न्यूक्लियर वेपन पड़े थे जो उन्होंने रशिया को दे दिया, ठीक है। अगर उन्होंने वो
वेपन्स रशिया को दिया नहीं होता, आज रशिया के लिए वो डेटरेंट का काम करता। रशिया यूक्रेन में ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन करने का सोच भी नहीं सकता था। ऐसा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनके विजन में था। उन्होंने कहा था दैट आवर न्यूक्लियर वेपन्स आर मेंट प्योरली एज डेटरेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एडवेंचर बाय एन एडवर्सरी। Very interesting word he provided. So any nuclear weapon we have, it acts as a discouragement to another player. They will worry कि अगर हम अटैक करेंगे तो सामने वाला अटैक करेगा. Yes or no? This is very interesting. So if you have read Sherlock Holmes or watched this web series, then you know that Sherlock, you can say, used, you can say, many of his knowledge as a deterrent to Moriarty. मॉरियार्टी को रोकने के लिए उन्होंने डेटरेंट का काम किया, ठीक है। उनके पास एक नॉलेज था, ठीक है, कोड थे। अगर वो कोड, ठीक है, उन्होंने अगर किसी को दे दिए तो वो मॉरियार्टी को मार डालते, ये सुनो। और मॉरियार्टी को एक से कहीं ना कहीं एक से वो गलत काम ना करे, उसको रोकने के लिए उस नॉलेज का उन्होंने काम किया। दैट इज एक्टिंग एज अ डेटरेंट। समझ आया? वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा मजेदार सा सेशन on, you can say, this house of cards. The conclusion is that our investigative system and our governance systems are not doing a lot of efforts. They must put efforts. They must take this issue seriously. So what you have to do is, समझदार बच्चा है ना, जिसने इसको अच्छे से पढ़ा, that person will give a very good summary of the passage in the comment box. इस पैसेज को वापस पढ़िए, ठीक है। मैं इसके लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसको वापस पढ़िए और इसकी एक समरी लिखिए, जो भी 3-4 लाइन में आप लिख सके, समरी दीजिए और एक अच्छा सा कंक्लूजन अपने शब्दों में यहाँ पे लिखिए। दैट्स हाउ द लर्निंग टेक्स प्लेस, ठीक है। एट द सेम टाइम डिफाइन द फ्यू क्वेश्चन विच आई एम पुटिंग हियर. What is algo trading? Write down in your own, you can say, sentence. What are the checks and balances in the governance of India? ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो भी वो सिस्टम चलाते हैं उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे हैं वो बताइए. व्हाट इज co-location scam of NSE? Please tell me who is the new chief of SEBI? Very good question. And list at least 3 scams related to stock market. ठीक है, यहाँ पे लिख के बताइए. I hope this is very clear to everyone. ठीक है, काफी मजेदार सा सेशन था. ठीक है, I'm sure I really enjoyed while making the session and while delivering to you. ठीक है, I'm sure you must have also enjoyed by doing it. So don't miss out to, again, say, subscribe our channel, like this video, share it to large number of people so that large number of them can gain lot of benefit of regular such kind of reading. And it has to be regular. You can't go out कि भाई आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा तो फायदा नहीं होगा. ठीक है, और ये ऐसी चीज़ है कि बहुत एक्साइटिंग नहीं लगती है पहली बार में रीडिंग करना और रीडिंग से समझना, बट बिलीव मी, इट इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इफ यू डू इट you are going to get short 100% improvement in your thought process and in your score. Okay, thank you and all the best.